Assalamu alaikum ji. This is Ahsan Sheikh. I welcome you all in the sixth episode of Facebook Live Sessions. And today we are really fortunate enough to have Ms. Sana Rahman with us, who is a Deputy Manager Recruitment and Training at Park Suzuki. So the topic that we have decided to talk on today is time management. And as you all are aware that managing time has always been a very tough job for each and every single person. Why? Because our life is surrounded by a lot of things and we are really not good at this skill. So, and it is very important to organize life. It is very important to go with the flow in such a way that your things are not stuck up. Your schedule is such maintained that things are not left undone. So it is something that students also have to look at. And when we're talking about students, then definitely they find themselves very in a kind of a dilemma, what to do, what not to do. And there are many things that are attached with this topic. So uh, life seems to be quite difficult when it is not managed perfectly. So time management is something which is very important. It's a very important factor, and it really impacts our productivity. So that is why we really need to look at it. So let's see this whole topic through the eyes of Sana, and let's see what she's got to say about it. Yes, Sana. Hello, Ehsan. How are you doing? I'm good. I'm good. That's great. Actually, thank you, Ehsan, for inviting me for actually imparting my knowledge to the students of your university. And really, the topic that we have chosen today is really good topic. Very less spoken about and certainly a very important topic जो कि आपके पर्सनल एज वेल एज आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें आपको हेल्प आउट करता है. Regarding the time management, first of all, we'll go into the definition of time management. What is time management? एक बहुत मोटा सा वर्ड है जो डेफिनेटली हम MBA की बुक में पढ़ते आ रहे होते हैं. तो मैनेजमेंट की तमाम बुक में it has been described as a process जिसके through we are actually planning our time and consciously planning our time. किस तरीके से we have to allocate time to the task that are provided to us for a given day, और जो है कितना हम उसके ऊपर जो है कंट्रोल रखते हैं. It's all about time management. That's it. Right. Sana, हाउ डू यू डिस्क्राइब द फैक्ट कि अगर हम इस हवाले से बात करते हैं कि जैसे स्टूडेंट्स को देखें कि वो कैसे अपनी लाइफ को मैनेज करें यानी हमने ये देखा है कि एक स्टूडेंट जो पढ़ रहा है वो तो उसको बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पा रहा अपनी ज़िंदगी को, यानी कि उसकी फैमिली भी है, हिज गॉट इज़ फैमिली, हिज गॉट इज़ फ्रेंड्स, और अगर कोई ऑफिस भी जाता है तो उसको ऑफिस भी मैनेज करना है. तो इसको ज़रा डिटेल में आप प्लीज़ बताएं, और कि किस तरीके से मैनेज हो सकती है, और हम अपने स्केजुलाइज कैसे कर सकते हैं चीज़ों को, प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे बच सकते हैं. देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन माय माइंड, सो काइंडली पुट लाइट ऑन दैट इन मोर डिटेल वे. Yeah, so true on this aspect. Okay, being a student, as in we have also me myself as also as well as many students are currently facing this problem of managing time. Okay, because इस वक्त unfortunately the situation extra जो add-ons मिले ना इस वक्त के students को वो COVID में मिल गया है. ठीक है, that is a kind of a mental stress. Uh, Fortunately or unfortunately, we have never been educated on time management. But the only thing that is more concerned about time management is having a discipline in life. राइट नाउ जो है जो आप डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर प्रेशर ये है कि भाई एकेडमिक ईयर को किस तरह से कंप्लीट किया जाएगा, मीन वाइल टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली, बिकॉज लॉकडाउन है प्रॉब्लली सबके लिए, और जो है फैमिली को लुक आफ्टर करना डेफिनेटली एक फैमिली लाइफ एक काइंड ऑफ अ बिल्कुल हैप हेजर्ड सी लाइफ होती है. डोंट नो कि सुबह को क्या हमने प्लान किया हुआ और फिर दोपहर में क्या करना है, गेस्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, गेस्ट नहीं आ रहे हैं तो यू नो घर की सिचुएशन क्या है, घर में किस तरह से हमारे पास जो है वो चीज़ें आएंगी. ठीक है, डेफिनेटली उसको हम प्लान नहीं कर सकते लेकिन उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. मीन वाइल अगर कोई स्टूडेंट है, और डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स पोर्टल के थ्रू जो है हमें देख रहे होंगे, तो उनका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि यार अब कोविड की सिचुएशन आ गई है. इस कोविड की सिचुएशन के अंदर अपना जो एजुकेशनल टास्क है, जिसका ना असाइनमेंट्स हैं, जिसका ना क्विजेज हैं, जिसका ना एग्जाम प्लानिंग है, एंड डेफिनेटली लर्निंग टाइम है, उसको कैसे मैनेज करें. इसके साथ साथ जो है जो राइट नाउ मेजोरिटी लोगों को जो मैं देख रही हूँ कि जब से कोविड की सिचुएशन हुई है, पीपल आर
highly active on social media platforms, be it Twitter, be it Instagram, be it Facebook, जो कि जो है मेजोरिटी ये यूज़ करता है, एंड नो बडी इज़ फोकसिंग ऑन कि यार इस टाइम को हम कंस्ट्रक्टिव यूज़ करें, ठीक है ना। डेफिनेटली वो कभी इस तरह की आपको सोच ही नहीं दी गई, तो इसलिए आपने कभी प्लान भी नहीं किया हुआ। लेकिन अब जो है इस तरह के जब चैलेंजेस आ गए हैं, जब आपके पास जो है कोई भी चीज़ प्लान नहीं है, ऑफ कोर्स जो बच्चे सुबह को उठ के यूनिवर्सिटी आते थे उनका स्केड्यूल डिस्टर्ब हो गया है, रात को देर से सो रहे हैं ड्यू टू ऑल दीज एक्टिविटीज़, कि भाई सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, टीवी पे लगे हुए हैं। नेटफ्लिक्स इज ऑल्सो समथिंग राइट नाउ इज काइंड ऑफ अ बूम, के जो है आधी से ज़्यादा जो है जो यूथ है वो जो है वो सीरीज़ में लगी हुई है, ठीक है। तो अगर आप सोशल मीडिया से आप अपने आप को बचा लें, तो देन ये जो आपका सीरीज़ आ गई हैं, टीवी सीरियल्स आ गए, ये जो है वो काइंड ऑफ एडिक्शन हो गए। एंड बिलीव मी, आई आई वाज रीडिंग द स्टडीज जो कि थी हमारे पास, कि watching the series, watching these series actually give you no learning, ठीक है। ये आपको जो है मज़ीद जो है एडिक्टिव करती है, एंड यू बिकम मोर प्रोन टू ईटिंग एज वेल एज यू बिकम मोर इनटू वाचिंग मोर सीरीज, ठीक है, जितना आप ये सीरीज देख रहे होते हैं। तो डेफिनेटली वो आपका जो एक प्लानर था पहले, जिसमें जो है स्टूडेंट अपना डे प्लान करते थे, यार सुबह को यूनिवर्सिटी जाना है, लेक्चर लेना है, उसके साथ साथ जो है एग्जाम की थोड़ी बहुत जो है तैयारी करके रखनी है, जो कि हम भी अपने स्कूल लाइफ में करते थे, यार एटलीस्ट पूरा लेसन नहीं तो उसका लेसन का कुछ पार्ट जो है हम याद रख लें। तो वो सारी चीज़ें जो है डिस्टर्ब हो गई हैं, ठीक है। राइट नाउ मुझे ये चैलेंजेस नज़र आते हैं स्टूडेंट के साथ, और मैं इससे पहले भी कुछ सेशंस किए थे जिसमें बच्चों ने ये हमें बताया था कि वी आर वी आर नॉट फोकस्ड टू द थिंग्स राइट नाउ। तो बीइंग अ प्रोफेशनल, जो कि जो है अपनी लाइफ के चैलेंजेस को भी जो है लेके मैं आगे बढ़ी, और जो है अपनी लाइफ के चैलेंजेस को देखते हुए, राइट नाउ स्टूडेंट्स के चैलेंजेस को देखते हुए, एंड जो करंट जो पेंडेमिक के थ्रू जो चैलेंजेस हुए हैं, जिसमें हम खुद प्रोफेशनल लोग जो है इसको फेस कर रहे हैं। तो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज कि वी हैव टू बिकम मोर डिसिप्लिन, चीज़ों को प्लान करना पड़ेगा, ठीक है ना। विदाउट प्लानिंग नथिंग हैपन्स, ठीक है। यूजुअली लोग कहते हैं कि ठीक है आप जो है प्लान करें, तो हमारे पास गैजेट्स आ गए हैं, रिमाइंडर लगा लेते हैं फ़ोन के अंदर, उसके बाद जो है हम क्या कर लेते हैं कि लैपटॉप में रिमाइंडर लगा लेते हैं, ठीक है। दीज थिंग्स वर्क बट शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम के लिए। सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी ये है, राइट इट डाउन विथ योर ओन हैंड। जब आप अपने हाथों से जो है उसको लिखते हैं, तो उसमें ये होता है कि आपकी मेमोरी भी अच्छी हो जाती है, और साथ साथ आपको रिकॉल भी होता है कि यार ये काम मुझे जो है करना था। द नेक्स्ट थिंग इज दिस, कि जो है आप अपनी चीज़ों को प्लान करें एक दिन पहले, राइट। कि जो है सोने से पहले जो है यू हैव एम्पल टाइम, 1 घंटा होता है, उसमें आप सोशल मीडिया को बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट कर दें अपने पास से। डिस्ट्रैक्ट करने के बाद जो है आप ये करें कि थिंक अबाउट द टास्क जो आपको सुबह को उठ के करना है। बड़ी अच्छी बात है, जो मैं कभी 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 अपने जो है वो एल्डर्स पेरेंट्स से भी जो है सुन रही होती हूँ, कि जो है हम अपने नेक्स्ट डे को प्लान करते थे, तो ये हमारी वैल्यूज़ के साथ जो है ये प्लानिंग का पार्ट जो है अटैच हुआ है। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सोसाइटी है उस वो इतनी फास्ट मूविंग कर रही है कि जो है हम उसको जो है पिक नहीं कर पाए, ठीक है। वरना हमारे पेरेंट्स, हम सबके पेरेंट्स जो है अपनी एक डायरी जो है लिखा करते थे। शुरू में बहुत सारे लोगों को ये होता था कि यार ये क्यों लिखते हैं, ठीक है ना, बट दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ प्लानर, जिससे हम लिखते थे कि भाई हमारा नेक्स्ट डे कैसे जाना चाहिए। एंड दिस इज सर्टेनली, मैंने भी जो है बहुत देर बाद जो है पिक किया, बट मुझे ये पता चला कि इट रियली हेल्प्स यू आउट। द अदर थिंग इज कि आप अपना डे प्लान करें कि यार करना क्या है, उसके लिए अकॉर्डिंगली फिर आप अपना जो है वो वेकअप टाइम भी जो है डिज़ाइन करेंगे, और आप अपना हर एक्टिविटी का टास्क जो है वो डिज़ाइन करेंगे, ठीक है ना। उसके साथ साथ जो है वो एक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, कि जो है जिस तरह से हमने भी देखा कि सबसे पहले जो है अपना सबसे इम्पोर्टेंट टास्क जो है वो आप लिख लें, कि सबसे इम्पोर्टेंट डे का जो है कौन सा टास्क है जो मुझे करना है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है आप ये भी प्लान कर लें कि भाई आपने किस एक्टिविटी को कितना टाइम देना है। तो इस तरह से अगर आप लेके चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें विल गेट इन कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ, एंड देन डेफिनेटली यू वुड नॉट बी एबल टू से कि यार टाइम नहीं है। दिस इज इट। बिल्कुल। सही। और आपने एक बात अच्छी कही कि वो सीरीज का जो एक सिलसिला है वो ऐसा होता है कि आपने एक देख ली है, सो नाउ यू वांट टू सी द अदर वन बिकॉज यू रियली लाइक यू रियली वांट टू नो, यू आर ईगर टू नो दैट एंड यू बिकम सो Eager to. क्यूरियस व्हाट इज गोना Yes. हैपन नाउ एंड your whole attention is over there, so definitely you cannot do the other tasks which are left to be done. तो ये एक फैक्ट है। So और true. ये भी बात बहुत सही है कि एक ज़माना था, it was a time कि पीपल यूज टू राइट डायरीज, वो डायरी इजली, और ये अच्छा Hmm. एक अच्छी हैबिट थी, एक अच्छी आदत थी
कि आप, और आज भी साइकोलॉजी भी यही कहती है कि आप जो हैं वो लिखें, क्योंकि जो आप लिख के अपने एक कागज़ पे जब आप वो तमाम चीज़ें लेके आते हैं जो आप समझते हैं, तो या जो आप अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हैं, आप अपने आप को और पहचानना शुरू कर देते हैं, आप और ज़्यादा बेहतर होना शुरू कर देते हैं। दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये हो रहा है कि लिखा तो जा रहा है, लेकिन हम वो सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं। हाँ, पहले ये होता था कि जो लिखते थे वो इंसान अपने तक ही रखता था। अब जो लिख रहा है वो सब देख रहे होते हैं, लेकिन उस पे भी एक डिबेट शुरू हो जाती है, और फिर वही टाइम मैनेजमेंट को हम रो रहे होते हैं कि टाइम मैनेज नहीं हो रहा। तो वेरी ट्रू, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, मुझे एक बात ये बताएं कि प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे बचा जा सकता है? क्योंकि हमारा अलमिया ये है कि वी थिंक ऑफ समथिंग, हम कहते हैं कि हाँ हमने ये काम करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने ये बात कही कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, यू शुड डू दैट। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है वो सोच रहा है कि भाई मैं कल सुबह उठूंगा, आई विल वेक अप इन द मॉर्निंग टुमारो, एंड आई विल वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और मैं फिर जो है वो भाई एक वॉक करूंगा मॉर्निंग, और फिर मैं ऑफिस चला जाऊंगा, मैं वहाँ से आऊँगा या यूनिवर्सिटी जाऊँगा, वहाँ से वापस आऊँगा, मैं यही सारी चीज़ें करूँगा। लेकिन हो क्या रहा है कि एक तो प्रोक्रेस्टिनेट हो रही है चीज़, वो नहीं कर रहा है, बैठा है तो बैठा ही है, वही मोबाइल। ये तो आपको पता है एक वायरस है आजकल का मोबाइल। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल ही गलत है, डेफिनेटली देयर आर सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, बट जब आप कोई भी चीज़ एक्सेसिव मकदार में लेते हैं, सो इट इज़ डेफिनेटली क्रूशल फॉर यू। तो प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे बचा जा सकता है? मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने जिम की फीस तो दे दी है, लेकिन सिर्फ फीस दी है, दे नॉट गोइंग ओवर देयर, व्हाई? बिकॉज़ दे कांट डू दैट। टाइम नहीं है इतना। एक ये तो हमारे यहाँ तो आई थिंक इट इज समथिंग व्हिच इज ओवररेटेड, हमने ओवररेट किया हुआ है इस चीज को ओवररेटेड। कि भाई वक्त नहीं है हमारे पास। तो प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे अवॉइड करें सना हम? अच्छा, वेरी ट्रूली सेट के जो है हमारे पास जो है हम लिख रहे हैं, वी आर पोरिंग आवर आइडियाज, बट इट्स ऑन सोशल मीडिया, नॉट यू कैन से नॉट लिमिटेड टू अस। ठीक है, पहले ये होता था कि डायरी लिखते थे, और वो जो है कन्फाइंड डायरी होती थी, काइंड ऑफ अ पर्सनल डायरी होती थी, इन विच आई विल बी राइटिंग ऑल माई थॉट्स एज वेल एज ऑल माई आइडियाज, एज वेल एज ऑल माई स्टोरी ऑफ द डे। ठीक है, बहुत सारे लोग, इवन माय सिस्टर यूज्ड टू डू दैट, कि जो है वो अपनी पूरी स्टोरी ऑफ द डे जो है वो अपनी डायरी में लिखती थी, एंड आई वाज लाइक कि यार ये क्या करती है। बट लेटर ऑन आई रियलाइज कि जो है डेफिनेटली जब आप इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट इवेंट्स ऑफ लाइफ जो है वो लिखते हुए आते हो, तो यू कैन रिकॉल बेस्ट, यू कैन हैव द क्या कहते हैं, लर्निंग बाइट्स फ्रॉम देम एज वेल। आप उससे लर्न करते हो। डेफिनेटली हर इवेंट जो आपकी लाइफ में आ रहा होता है वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आ रहा होता है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द आइडिया कि भाई हम लिख तो रहे हैं, लेकिन जो है सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, और सोशल मीडिया पे भी लिख रहे हैं, तो जो है वो जस्ट वी आर रेप्लिकेटिंग द थिंग्स विदाउट जस्टिफाइंग देम। ठीक है, एक न्यूज आती है, फॉर एग्जांपल अगर शुरू में कोविड फिगर्स के बारे में ही आया था कि वो जो है वो हम बहुत ज़्यादा जो है वो एग्जिजरेट करके बता रहे थे, दैट वाज नॉट द फिगर्स ऑफ एक्चुअल कोविड जो कि गवर्नमेंट ने स्टेट की थी। रीजन बीइंग कि जो है एक काइंड ऑफ अ हाइप आ गई थी, मार्केट में क्यूरियोसिटी हो गई थी, हमने लोगों को डराना शुरू कर दिया था, और फिर जो है एक फेक न्यूज़ निकलती है, विदाउट ऑथेंटिकेशन किए हुए उसके बगैर जो है हम उसको प्रोपेल कर देते हैं। एंड सोशल मीडिया समथिंग कि सिर्फ एक क्लिक के ऊपर आपके इन्फॉर्मेशन जो है पाकिस्तान में, एक क्लिक के ऊपर आपके इन्फॉर्मेशन जो है वो यूएस में, एक क्लिक के ऊपर आपके इन्फॉर्मेशन जो है अफ्रीका एंड दूसरे कॉन्टिनेंट्स में। ठीक है ना, तो इतनी जल्दी जो ये आइडियाज़ और जो है आपकी जो बातें होती हैं ये यहाँ से रेप्लिकेट होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि जो है ठीक है, इट्स आर राइट टू राइट इट डाउन, बिकॉज वक्त के साथ साथ डायनेमिक्स चेंज हो गए हैं मार्केट के, वक्त के साथ साथ जो है वो लिखने के डायनेमिक्स चेंज हो गए हैं, वक्त के साथ साथ जो है वी आर यूटिलाइजिंग मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स फॉर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन। पहले ज़माने में सिर्फ बुक हुआ करती थी, बुक के बाद जो है फिर गैजेट्स आए, फिर गैजेट्स के बाद जो है वी आर यूजिंग द पीडीएफ बुक्स। अब तो पीडीएफ बुक्स बहुत सारी, पहले तो लोग खरीद के पढ़ा करते थे, उसके लिए भी वेट किया करते थे। अब जो है लोग खरीद के नहीं पढ़ते, बल्कि दे गेट ऑल द एक्सेस फ्रॉम इंटरनेट, वहाँ से डाउनलोड की पीडीएफ लिया, और यू नो यू कैन हैव एक्सेस टू एज मेनी बुक्स एज यू वांट। ठीक है, तो डेफिनेटली वक्त के साथ साथ वी हैव टू यूज द मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स फॉर इट, नंबर वन। और दिस इज द रियलिटी, होना भी चाहिए। ठीक है, बट यूटिलाइजिंग दीज चैनल्स और यूटिलाइजिंग दीज थिंग्स विदाउट थिंकिंग कि यार इससे हमारे पास जो है प्रॉस क्या हो सकते हैं, कॉन्स क्या हो सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी आर यूजिंग इंटरनेट for finding any updated research on the assignment is something really fruitful for us. ठीक है, आई स्टिल रिमेम्बर इन 2011 आई गॉट दैट एक्सेस टू इंटरनेट, और वहाँ पर यू नो व्हेन यू आर
ओपन टू द वर्ल्ड ऑफ रिसर्च, तो आपको पता चलता है कि दुनिया में क्या हो चुका है, ठीक है। बट इन माई स्कूल डेज इट वॉज इन 1998 के ज़माने में, तो इंटरनेट तो उस वक्त नया नया आया था, तो एक्सेप्ट बुक्स हमारे पास कोई नॉलेज ही नहीं थी, ठीक है ना। एंड बुक्स और जो पब्लिश हमारे पास जो है रजिस्टर्स हुआ करते थे, जर्नल्स हुआ करते थे, उसके अलावा हमारे पास कोई नॉलेज नहीं थी। बुक्स हम लेके आते थे डिफरेंट राइटर के, वहाँ से जाके जो है रिसर्च को बना के नोट्स बनाते थे। अब तो इतना आसान हो गया है कि हम उसको यूटिलाइज करें, ठीक है। बट कॉन्शियसली अब जो है अगर हम उसको नहीं यूज करेंगे, देन वी वी नॉट जस्ट वी, बल्कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी यही कहेगी कि वी डोंट हैव एम्पल टाइम टू डू द टास्क, ठीक है। फॉर दैट थिंग द बेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस: प्रायोरिटाइज। लिख के रखें क्या करना है। आई एम अ स्टूडेंट, इफ आई एम अ स्टूडेंट आई हैव टू प्लान यार लर्निंग को कितना टाइम देना है, असाइनमेंट मिला हुआ है, असाइनमेंट की ड्यू डेट क्या है, और ड्यू डेट से मुझे जो है इतने टाइम पहले ख़त्म कर लेना है। फॉर एग्जांपल, मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ कि राइट नाउ इफ़ आई एम वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो मेरा जो है टास्क अपने लिए चैलेंज ये होता है कि आई हैव टू कंप्लीट XYZ टास्क दैट हैज़ बीन गिवन टू मी। और फॉर एग्जांपल उसकी ड्यू डेट जो है आज शाम तक है, तो मैंने जो है लंच से पहले का टाइम रखा होता है कि मैं उसको कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है। लंच से पहले इसलिए कह रही हूँ बिकॉज यूजुअली वी हैव बीन असाइंड द टास्क अ डे बिफोर, ठीक है। क्योंकि एक दिन पहले मैंने प्लानिंग स्टार्ट की, पहले प्लानिंग करूंगी कि भाई क्या करना क्या है, व्हाट आई नीड टू डन, मुझे पहले इसको चंक डाउन करना है। चंक डाउन मीन्स कि अपने टास्क को जो है मैंने छोटे छोटे उसमें जो है स्टेप्स में डिवाइड करना है। इफ आई हैव बीन गिवन अ टास्क कि भाई जो है आपने फॉर एग्जांपल एक करंट एक्विजिशन में एक पोजीशन के ऊपर जो है वर्किंग करनी है, देन आई नीड टू फाइंड कि यार पोजीशन क्या है, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है। जूनियर लेवल पोजीशन है, सीनियर लेवल पोजीशन है, देन आई नीड टू फाइंड आउट कि यार मेरे पास चैनल्स कौन कौन से अवेलेबल है। डू आई नीड टू गेट समवन ऑन बोर्ड ऑन इट, डू आई नीड टू यूज द सोशल मीडिया चैनल, डू आई नीड टू हैव अ काइंड ऑफ अ एग्जीक्यूटिव सर्च फॉर्म फॉर इट, ठीक है। अनटिल अनलेस आई वुड नॉट प्लान ऑन इट, तो मैं ये काम जो है उस सर्टेन टाइम से पहले नहीं करके दे सकती। द अदर थिंग इज दिस कि जो है फिर चंक डाउन करने के बाद, ब्रेन स्टॉर्म करने के बाद, मैं प्लानिंग के स्टेप पे आऊँगी। आई नीड टू फोकस कि भाई इतनी देर में ईमेल कर देनी है, इतनी देर में जो है कॉल्स पे बात कर लेनी है, एंड इतनी देर के अंदर अंदर जो है मैंने जो है ये चीज़ को कम्युनिकेट करके, एंड आई नीड टू वर्क ऑन माई थिंग्स कि आप किस तरह से करना है, ठीक है। द अदर थिंग, क्योंकि आपकी ये भी होता है कि आपने टॉप मैनेजमेंट को भी मीन वाइल जो है बताना होता है, आपने अपनी टीम को भी जो है वो चीज़ डिलीवर करनी होती है, और आपने जो है अपने जो पार्टनर्स होते हैं जिनके साथ आप ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे थे उनको भी अपडेट करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइन मैनेजर मुझसे पूछता जी काम हो गया, तो मुझे उसको बताना था सर वी आर इन दिस स्टेप, और ये है ये काम जो है इतने स्टेप में इतने टाइम तक हो जाएगा, यू नो। तो सबको साथ लेके चलना होता है। बिसाइड्स हमने एक और काम करना होता है कि जो है टाइम से कट ऑफ पहले क्यों रखते हैं। रीजन मीन यू डोंट नो कि जो है कौन सी चीज़ आके जो है आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाली है, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्टर्स आर ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको जो है करना होता है कि भाई आप सना आपकी वीडियो रुकी है। कैन यू हियर मी सना? आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। आई थिंक सना के साथ कोई मे बी कोई सिग्नल का इशू हो, दैट्स व्हाई इट्स हैपनिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस वो कर रही थी, और बिल्कुल सही कहा कि डेडलाइंस वगैरह जो होती हैं वो आ जाती हैं, और अ, उसको भी बड़ा मैनेज करना होता है। यानी ऐसा भी होता है कि इन्होंने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मुझे लगी वो ये लगी कि एक तो प्रायोरिटाइज आपने करना है, दूसरा आपने ये करना है कि डेडलाइंस का भी बहुत ख्याल रखना है। यानी when I was a student, तो when I was a student I always managed my things in that kind of way कि अगर मैं कोई कोर्स पढ़ रहा हूँ तो मुझे ये पता होता था कि मुझे इतने चैप्टर्स इसके कवर करने हैं, या मुझे इतने क्वेश्चंस कवर करने हैं, या मुझे इतनी प्रेजेंटेशंस कवर करनी है, तो मैं 3 दिन के बाद यहाँ खड़ा हूँगा। बिकॉज इफ़ आई एम नॉट डूइंग दैट, अगर मैं वो नहीं कर रहा, तो आई एम नो वेयर, मैं मतलब मेरी तैयारी नहीं होगी फिर। तो
ये इस चीज़ का ख्याल बहुत ज़रूरी होता है, फर्स्ट थिंग। और जब आप प्रोफेशनल लाइफ में भी इवन आते हैं, व्हेन यू आर इन दैट प्रोफेशनल लाइफ, तो भी यही होता है कि आप, यानी मैं इसको ऐसे कह लूँ कि हमारे पास बहुत सारे टास्क होते हैं, वी हैव अ लॉट ऑफ टास्क, वी हैव टू ईमेल, वी हैव टू टॉक, वी हैव टू हैव द मीटिंग्स। तो क्या करना है कि आपने उनको चंक्स में डिवाइड किया हुआ है कि भाई ये टाइम जो होगा वो, इसमें ईमेल्स अगर जानी है तो वो चली जानी चाहिए, कॉल्स अगर करनी है तो वो हो जानी चाहिए, तो मीटिंग है तो वो उसका स्केड्यूल हमें पहले से पता हो। ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपको चीज़ें इन एडवांस पता होनी चाहिए, बिकॉज इफ़ यू डोंट नो दोज थिंग्स इन एडवांस, तो आप फिर वहाँ पे लैग कर जाते हैं, आपको नहीं पता होता कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। तो वहाँ ये लैकनेसेस होती हैं हमारी, जो हम जिनका ख्याल नहीं रख रहे होते हैं। और इसके अलावा बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, यानी इफ़ यू आर नॉट एबल टू बैलेंस योर लाइफ, देन दैट्स अ मेन, आई थिंक, प्रॉब्लम फॉर यू। अपनी लाइफ को बैलेंस से मुराद मेरी मुराद ये है कि आपने ये देखना है कि अ, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन किसी भी काम से आपको कोई मना नहीं कर रहा है। वी गॉट सना बैक। जी सना, यस। आपको आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। इज एवरीथिंग ऑल राइट? फाइन? हाँ हाँ। राइट। I don't know what happened. Probably it got disconnected. दैट माइट बी अ प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेट, बट इट्स ओके। हाँ आप कंटिन्यू करें जहाँ से करें जी। ठीक है। तो दिस इज ऑल कि जो है हम इस तरह से जो है वो प्लान करते हैं, एंड डेफिनेटली डिस्ट्रैक्टर्स को हमें ज़रूर देखना होता है। डिस्ट्रैक्टर्स आर रियली इंपॉर्टेंट थिंग। फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव बीन गिवन अ टास्क कि भाई ये करके लेकर आना है, एंड समवन केम टू मी दैट हमारी पिछली पोजीशन का क्या हुआ, देन आई नीड टू आस्क दैट पर्सन, यार कल फॉर एग्जांपल कल 5 बजे के बाद बात करना, बिकॉज राइट नाउ आई हैव कपल ऑफ थिंग्स टू डू दैट आर इन द quadrant of urgent and important, and that is why I cannot cater to your request right now. Politely you have to say like this. राइट। अच्छा, प्रोक्रेस्टिनेशन से भी बचने के लिए आपने यही बताया है कि आप उसमें प्रायोरिटाइज करें अपनी चीज़ों को। और फर्स्ट ये देखें कि आपकी कौन सी चीज़, आपने ये भी बताया कि उसको आप नोट डाउन करें, दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात, Hmm. डेडलाइंस का भी ख्याल रखें कि किस चीज़ की कब कोई डेडलाइन है, क्योंकि हम तो प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंदर यही होता है कि आपको एक डेट दी भी होती है कि जी योर वर्क शुड बी डन बाय दिस डेट। या So true. क्योंकि काम इतने सारे होते हैं, टास्क इतने सारे होते हैं, तो उसको मैनेज करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि Hmm. टू मैनेज टाइम यू डेफिनेटली हैव टू बी अ गुड मैनेजर। और एक मैनेजर वही होता है जो तमाम चीज़ों को लेके चले। तो Hmm. अगर आप स्टूडेंट लाइफ में ही अपने आप को एक सही मैनेज मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली फ्यूचर के अंदर आप एक अच्छे मैनेजर कभी भी नहीं बन Hmm. सकते हैं। अच्छा, एक बात मुझे आप ये बताएं कि हाउ डू यू मैनेज दैट स्ट्रेस एट वर्क? क्योंकि होता ये है कि आपने काम भी करना है, टाइमली भी करना है, और फिर आपको स्ट्रेस भी ऑब्वियसली होता है क्योंकि कंटिन्यूस कॉल्स आ रही हैं और आपको फिर ये कहा जा रहा है कि नहीं ये काम करना है, और फिर आप पे स्ट्रेस है, फिर आप पे ये भी टेंशन है कि Hmm. आपने, मैं भी यही, आप जब नहीं थी तो मैं यही डिस्कस कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि उसको भी मैनेज करना है आपको ओवरऑल कि, तो वो कैसे आप करते हैं? आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं? क्योंकि स्ट्रेस ऑल्सो अफेक्ट्स योर Hmm. परफॉर्मेंस। होता ये है कि So आपको true. जो काम करना था जो 10 मिनट में हो सकता था, आपने स्ट्रेस इतना ले लिया कि वो 20 मिनट में भी नहीं हुआ। जी। So true. I'll come to this point as well. Let me answer you about the procrastination thing. देखा, प्रोक्रेस्टिनेशन थिंग जो होती है, हमने कुछ चैलेंजेस की बात कर ली कि ये तो डेली लाइफ में हमें आएंगे ही आएंगे। साथ में ये कि वी हैव डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, लाइक मैंने कहा कि प्लानर बना लें, उसके बाद जो है प्रायोरिटाइज कर लें, प्रायोरिटाइज करने के बाद जो है वैल्यू एलोकेट कर दें। द मेजर वैसे प्रोक्रेस्टिनेशन की अगर डेफिनेशन को आप देखें तो इट सेज कि यू कीप डिलेइंग द थिंग्स अंटिल उसकी जो है डेडलाइन बहुत करीब आ जाए। ठीक है ना? बिकॉज what are the motives according to psychology, what are the motives behind that this doing this procrastination thing? Psychology जो है ये कहती है probably you don't have value for that task to be done, you don't know the importance of that task। ठीक है? मेरे लिए अगर किसी चीज की वर्थ जो है वो 10 रुपए भी नहीं है तो मैं उस चीज को नहीं लूंगी। ठीक है? एंड इफ समथिंग इज वर्थ फॉर मी तो मैं जो है उसको लाखों में भी पे करके जो है ले लूंगी। तो द वैल्यू ऑफ द टास्क इज रियली इम्पोर्टेंट। ठीक है? इफ फॉर एग्जाम्पल, इफ a teacher as a teacher I'll give assignment to my students and the student feel कि यार कर लेंगे, जो कि एक हमारा कैजुअल सा एटीट्यूड होता है कि कर लेंगे। This casual attitude is because of the thing, because I myself is not intended or interested
टू लर्न थिंग। हम्म। मुझे मेरा इंटरेस्ट फर्स्ट ये होगा, यार एक नेटफ्लिक्स की सीरीज रहती है, यार वो न्यू मूवी रिलीज हुई है, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली कोई जो है न्यूज़ जो है पॉपअप हो जाती है हमारे फेसबुक या जो है ट्विटर पे, एंड वी एक्चुअली jumped into a kind of a हसल ऑनलाइन, जो हमारी एक फाइट शुरू हो जाती है कि हम जो है या तो उसके अगेंस्ट या उसके जो है क्या कहते हैं फेवर में जो है वो एक पूरा कमेंटिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड बिलीव मी, ये कमेंटिंग जो है आई वाज अगेन रीडिंग अ रिसर्च ऑन इट कि जो है ऑनलाइन जो हम ये काइंड ऑफ सोशल फाइट्स करते हैं अगेंस्ट और इन फेवर ऑफ समथिंग, ठीक है ना, इसका रिजल्ट कुछ नहीं आता, सिर्फ दीज थिंग्स एक्चुअली आर द जनरेटर ऑफ स्ट्रेस। ये हमें मजीद स्ट्रेस करती हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो है इफ़ यू आर इन द फेवर ऑफ अ थिंग और कहीं से आपको कोई जो है फायरिंग किस्म का जो है आर्ग्यूमेंट आ जाता है, तो आप वो उसकी जो प्रॉज एंड कॉन्स जिसके ऊपर आप डिस्कस कर रहे होते हैं आप वो भी छोड़ के और नेक्स्ट पे जंप कर जाते हैं, जो कि जो है पर्सनल काइंड ऑफ पर्सनल ग्रजेस और पर्सनल फाइट्स और पर्सनल जो है वो एक दूसरे को ह्यूमिलिटेशन पे चला जाता है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट तो कुछ आया नहीं, ना उसका कोई पोल हुआ, ना जो है उससे आपको कोई लेसन मिला, ना जो है आपने उससे कोई लर्निंग की, तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए प्रोक्रेस्टिनेशन जो है हम कर रहे होते हैं बिकॉज हमारे लिए उन चीज़ों की वैल्यू ज़्यादा होती है बनस्बत दैट असाइनमेंट दैट हैज़ बीन गिवन टू अस। हाँ, अगर हम उसकी जो है मीन वाइल गिविंग दैट असाइनमेंट नो जो प्रोफेशनल यूज़ है, फॉर एग्जांपल अगर मैं uh, को थोड़ा रिसर्च भी करेगा, हम्म। ठीक है ना। तो ये इस तरह से एंगेजमेंट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, बच्चों के लिए ये वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर जो है आपने बात की कि जो है टाइम मैनेजमेंट में हम ये भी कर रहे हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन में हम ये कर रहे हैं कि जो है प्रायोरिटाइज कर लिया, फिर उसके बाद 2-3 स्ट्रैटेजीज यूज होती हैं जो कि हम सबको आती हैं लेकिन हम सब यूज़ नहीं करते बिकॉज वी आर नॉट कॉन्शियसली थिंकिंग अबाउट दैम, ठीक है ना। आप सब ने स्टूडेंट्स ने स्पेशली अपने एमबीए के अंदर एक टाइम मैनेजमेंट का टूल पढ़ा होगा, दैट इज अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट टास्क वाला। वी हैव दैट 4 बॉक्सेस, 4 बॉक्सेस में हम ये करते हैं कि अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट है, नॉट अर्जेंट है लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है, एंड देन जो है इम्पॉर्टेंट है और अर्जेंट नहीं है, और देन द फोर्थ वन इज कि लीस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। देन वो जो हम प्लानर बना रहे हैं ना, वी रियली नीड टू पुट आवर टास्क इनटू दीज क्वाड्रेंट्स, ठीक है ना। अगर आप इस क्वाड्रेंट्स में नहीं पुट करोगे तो फिर वो आपका एक मोटिवेशन जो है ना काम करने का वो टूट जाएगा। द अदर थिंग इज वी आर रियली यूजिंग नाउ डेज, अब बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हमें पढ़ाया भी जाता है लेकिन उसकी सिग्निफिकेंस कभी नहीं बताई जाती। आई स्टिल रिमेंबर इन माई एमबीए प्रीटो रूल, मैनेजमेंट साइंसेज की बुक में पढ़ा था हमने, बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन अगर शायद एमबीए की क्लास में इतना अच्छा पढ़ लिया होता तो जो है उसको यू नो प्रैक्टिस बहुत जल्दी स्टार्ट कर लेते। हमने हमने तो प्रैक्टिस अभी स्टार्ट किया। That Pareto rule says 20% of your task actually generate 80% of the result, हम्म। ठीक है ना। तो आप जो अपना वो जो टास्क कर रहे हैं जिसमें आप ए बी सी करके अपने टास्क को डिफाइन कर रहे हैं ना कि मैंने सुबह उठते ही फॉर एग्जांपल सुबह उठते ही जाते ही जो है मैंने अपने मेजर टास्क में जो है 3 टास्क को जो है वो करना है, ठीक है। तो अगर आपका जो है वो 3 टास्क के अंदर जो है ये 20% 3 टास्क काउंट कर रहे हैं तो बिलीव मी आपका जो 80% काम है ना ऑफ द डे वो कंप्लीट ऐसे ही हो जाता है, ठीक है ना। देयर इज अ बुक एज वेल बाय द नेम ऑफ ईट दैट फ्रॉग, a really good book. That book is for all those students as well as professionals जो कि जो है टाइम मैनेजमेंट स्किल्स और प्रोक्रेस्टिनेशन से दूर जाना चाहते हैं। इन दैट बुक ऑल्सो दिस 4 क्वाड्रेंट जो हमारा जो है टाइम मैनेजमेंट का स्टाइल है वो वाला बताया गया है। द अदर थिंग इज कि जो है आप अकॉर्डिंग टू दैट बुक उसका जो एक मेजर समरी है वो ये है, you have to do your ugliest and the hardest and the most important task early in the morning, ठीक है। रियली इंपॉर्टेंट लेसन कि जो सबसे मुश्किल है जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा जो है आपको बिल्कुल पसंद नहीं है वो आप सुबह सुबह करें। साइकोलॉजी बिहाइंड दिस, एनर्जी बहुत अच्छी होती है, यू आर हाईली मोटिवेटेड, आप उस चीज़ को बहुत रिफ्रेश माइंड के साथ करते हैं,
ठीक है ना। तो दीज आर अ कपल ऑफ थिंग्स जो कि डेफिनेटली हमें जो है, अब हम इसको प्रैक्टिस करें तो पता चला है जी हाँ जी, इट रियली वर्क्स एंड इट रियली वर्क्स फॉर ऑल, नॉट जस्ट फॉर प्रोफेशनल्स बट फॉर स्टूडेंट्स, इवन फॉर दोस्त जो कि घर में होते हैं, हाउस होल्ड चीज़ों को आप देख रहे होते हैं। ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग दैट रियली हेल्प आउट, एंड स्टूडेंट्स को मैं समझती हूँ कि स्टूडेंट्स एज वेल एज जो प्रोफेशनल्स काम कर रहे हो, उनको जो है इससे लेसन लेके इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। आई माई सेल्फ इज डूइंग एंड इट इज रियली हेल्पिंग मी आउट। राइट। अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप टाइम मैनेज नहीं कर रहे हैं, एक और बड़ा मसला हो जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट आता है इसकी वजह से। यानी कि आप हम्म। डेफिनेटली इफ यू आर वर्किंग समवेयर और यू वर गिवन, यू वर असाइन सम काइंड ऑफ टास्क बट यू कुडंट डू इट, आपने नहीं किया, हम्म। तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि दैट पर्सन वाज एक्सपेक्टिंग you to do something and you did not complete that, and if you haven't completed it, हम्म। there would be some kind of argument. तो हम सिर्फ एक उस चीज़ की वजह से, अच्छा मैनेज ना करने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स में आ जाते हैं। तो हम्म। इस पे भी ज़रा बात करें कि वो कि कितना ज़रूरी है कि आप जो है वो स्मूथली काम करें, अदरवाइज आप दूसरे के लिए भी मसला बन जाते हैं। ये इस तरीके से मैं इसको रखूंगा जी। सो इम्पोर्टेंट। इसको मैं प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में अगर डिफाइन करूँ, ठीक है ना, प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में इसलिए डिफाइन करूँ बिकॉज वहाँ पे आपका वर्ड ऑफ माउथ मैटर करता है। इफ एनी स्टूडेंट ऑफ योर्स जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनता है, ही इज आंसरेबल टू हिज लाइन मैनेजर। ठीक है ना। Yeah. तो अगर उसका लाइन मैनेजर जो है उसको एक टास्क देता है दैट यू हैव टू कंप्लीट दिस डाटा बाय टुमारो एंड हैव टू सबमिट में द रिपोर्ट, ठीक है। हम्म, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कुछ क्वेश्चन उनसे पूछने होते हैं, बाय व्हाट टाइम डू यू नीड, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टास्क, ठीक है, व्हाट आई रियली नीड टू बी, व्हाट रियली नीड टू बी डन ऑन दिस रिपोर्ट। ठीक है ना। कभी कभी ये होता है कि बीइंग अ फ्रेशी व्हेन आई ज्वाइन एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो मुझे ये होता है यार मैं क्वेश्चन पूछूंगी ना, दे विल थिंक आई एम टू डम टू डू दिस टास्क। ठीक है। तो एक वो जो एक रिलक्टेंस होता है ना आंसरिंग और क्वेश्चन आंसरिंग करने में, वो हमें बहुत होता है। स्टूडेंट लाइफ से ही होता है, वो प्रोपेल होके जो है वो ऑफिस लाइफ में भी पहुंच जाता है। ठीक है। until and unless you will ask the significance, वो जो हम टास्क के सिग्निफिकेंस की बात कर रहे थे, until and unless you will ask about the significance of task, कि भाई कितना इम्पोर्टेंट। हम्म। हेलो। हेलो। सना, आपकी वीडियो फिर से रुक गई है। मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम है आपके, मे बी इंटरनेट कोई इशू है। हेलो। हेलो। लेट्स वेट फॉर सना टू कम एंड शी इज डेफिनेटली गोना ज्वाइन। तो हम बात जो कर रहे थे वो अभी यही बात इन्होंने डिस्कस की है जो मैं भी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि डिस्ट्रैक्शंस भी होती हैं हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी, और टास्क जो हैं हम वो डिवाइड करके नहीं चल रहे होते हैं। और मैं तो बल्कि एक बहुत आसान बात कहूँगा, बल्कि सना आ जाए तो उनके साथ ही ये बात डिस्कस होगी। लेकिन मैं अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा था, जिसमें मैं ये डिस्कस करना चाह रहा था कि हम डिस्ट्रैक्शंस को, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनको लिमिट करें। यानी वी हैव सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस, इट्स फाइन। और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैंने देखी है, जो हमें बड़ा ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है, जो हमें पता भी नहीं होगा इवन, वो ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा जब चीज़ें हमारी स्कैटर्ड हुई भी होती हैं, तो वो भी वेस्टेज ऑफ टाइम का एक रीज़न बन जाता है, एक बड़ा रीज़न बन जाता है। यानी ये ऐसा है कि मैं एक जानने वाले हैं मेरे, मैं उनको जानता हूँ। अक्सर औक़ात उनके साथ ऐसा होता है कि इफ़ ही हैज़ टू रीच समवेयर ही इज़ ऑलवेज लेट। अच्छा, वो क्यों लेट हैं? तो उनका नाम नहीं लूँगा मैं, शायद शो सुन रहे हों इस वक्त। तो वाई? बिकॉज मतलब मैं इसको ऐसे भी एग्जांपल दे सकता हूँ कि मैं जब काम कर रहा होता हूँ, सो ऑन माई टेबल इफ़ माई टेबल इज़ सो मच क्लटर्ड, तो मेरी परफॉर्मेंस खुद ब खुद जो है ना, वो मुझे समझ नहीं आता कि मैंने पेपर कहाँ रखा है वो, या मैंने वो बुक कहाँ रख दी उठा के, या मैंने क्या चीज़ कहाँ रखी है। तो हमें जब इतनी ज़्यादा एक आदत अगर नहीं होगी सफाई की, तो या चीज़ को जगह से उठा के जगह पे नहीं रखी, ये वो कॉजेज हैं जो हम नॉर्मली कर रहे होते हैं। ये मतलब कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये बहुत, ये एक ऐसी बात है जो आपको भी पता होगी, लेकिन उसकी तरफ तवज्जो अगर नहीं दे रहे हैं तो उसका नतीजा क्या निकल रहा है? व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट? व्हाट इज द एंड रिजल्ट ऑफ दैट? द एंड रिजल्ट ऑफ दैट इज कि
आप जो है वो उसको सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि आप अपना टास्क परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं उसकी वजह से। सना, मुझे लग रहा है कोई इशू कनेक्टिविटी में हो रहा है, इसलिए आई एम आप। नॉट श्योर कि क्या चल रहा है। मेरे पास तो डाटा भी ऑन है एंड मेरे पास तो वाईफाई भी जो है ऑन ऑलराइट, है। चलें, कोई बात नहीं। इमीडिएटली कुछ ना कुछ हो जाता है, बट अच्छा इट सना, रियली अभी इट्स आप, दीस काइंड ऑफ थिंग्स एक्चुअली हैपन। या हाँ। वो कोई इशू नहीं है। मैं सिर्फ ये बात कर रहा था अभी, यहाँ मैं ये कह रहा था कि डिस्ट्रैक्शंस जो होती हैं हमारे लिए, जैसे आपने भी बात की, तो उसमें मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर कर रहा था। मैं ये बता रहा था कि मेरी एक आदत है, वो ये कि आई डू नॉट वांट थिंग्स टू बी क्लटर्ड। मुझे मैं जहाँ काम कर रहा हूँ, मेरी ये कोशिश होती है कि वो टेबल जो है बिल्कुल साफ हो, क्यों, अगर इफ इट इज़ नॉट क्लीन तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। डिले, देखिए ना क्या होगा, काम आपका खुद ख़राब होता रहेगा, और जब ख़राब होगा वो डिले हो जाएगा, तो कोई पेपर नहीं मिल रहा, कोई चीज़ नहीं मिल रही, कोई बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी ज़िंदगी में चल रही होती हैं और हम उसको सही से मैनेज नहीं कर रहे होते हैं। अब मैं एक हज़रत उनको जानता हूँ, मेरे जानने वाले हैं और मेरे बहुत अच्छे एक्विटेंसेस में से हैं वो। तो उनको कभी भी कहीं जाना होता है तो ही इज़ ऑलवेज लेट, सम मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज़ लेट। मेरे करीबी दोस्त हैं तो मैं बता सकता हूँ उनके बारे में ऐसा। तो अच्छा, मैं उनसे इंक्वायर करता हूँ ऐसा क्यों है, तो कहते हैं यार मैं चीज़ें अपनी ना मुझे पता नहीं होता, मैं रख के छोड़ देता हूँ, भूल जाता हूँ। तो अब क्या हो रहा है कि कहीं जाना है तो ढूंढ रहे हैं, क्योंकि चीज़ आपने उठा के नहीं रखी। ये हर घर का अलमिया है, ये हर घर के अंदर हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि आपने एक चीज़ उठा के कहीं से उठा के कहीं रख दी, अब आप उसको उठा नहीं रहे वहाँ से, आपने वो बस वहीं पड़ा है, मोबाइल आपका कहीं रखा है, अब आप कहीं जाने के लिए बैठे हैं तो आप मोबाइल ढूंढने जा रहे हैं कि यार मैंने कहाँ रख दिया अपना मोबाइल, बिकॉज आई हैव टू टेक दैट मोबाइल एंड देन आई नीड टू लीव फॉर समवेयर। अब हो क्या रहा है, आप लेट हो रहे हैं इस वजह से, टाइम तो मैनेज नहीं हो रहा ना आपका। अब आप देखें रियल कॉस्ट क्या है, टाइम मैनेजमेंट के अंदर सारी चीज़ें आ गई। अगर आप काम दूसरे की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं कर रहे हैं, टाइम पे नहीं कर रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट भी आएगा, आर्ग्यूमेंट भी होगा, झगड़ा भी होगा। और अगर आपने कोई चीज़ अपनी इधर उधर रख दी है तो भी आप जो है वो कहीं वक्त पे नहीं पहुंचेंगे। तो हो क्या रहा है कि आदमी जितना मैनेज्ड होगा उतना उसका वक्त भी मैनेज्ड होगा इवेंचुअली, वरना क्या होगा, ये तमाम मसाइल होंगे। तो ट्रू। इसीलिए जो फर्स्ट जब हमारी कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हुई थी, हमने एक बात की थी कि जो है गेट डिसिप्लिन। ठीक है ना, ये जो डिसिप्लिन वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टिल रिमेम्बर के स्कूल डेज में जो है वो जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस होती थी ना कि भाई आपने जो है ना वो नीट एंड क्लीन ड्रेस पहनना है, आपने अपनी कॉपीज के ऊपर कवर चढ़ाना है। रियली एट दैट टाइम वो ये होता था, यार मतलब क्या मिस कर रही है। स्टिल आई रिकॉल दोज डेज कि यार मिस क्या करती थी कि वाइट क्यों चढ़ाना है भाई, कोई भी कलर चढ़ा ले, ब्राउन की चढ़ाना है, सही है ना। बट आफ्टर सीइंग दीज किड्स नाउ डेज, अब ये रियलाइज होता है कि वो जो उस दिन का जो डिसिप्लिन था, उस दिन की जो डांट थी, दैट इज रियली एक्चुअली हेल्प्ड अस इन इम्प्रूविंग। ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ों पे हम जो है जानते हैं कि हम जो है आज की जनरेशन को जो है डांट भी रहे होते हैं या हम उसको रिस्ट्रिक्ट भी करते हैं। आई स्टिल रिमेम्बर कि बहुत सारे लोगों को जो है, मुझे न्यू जनरेशन से ये शिकायत होती है, दे आर नॉट काइंड ऑफ के रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। ठीक है ना, ठीक है जी, जब पूछेंगे तो बता देंगे भाई, दिस शुड नॉट बी द एटीट्यूड। पूछेंगे तो बता देंगे कि क्या मतलब, जब इसका मतलब है कि यू आर ट्राइंग टू वेट फॉर अ सर्टेन टाइम, जब पानी आपके सर से ऊपर हो जाए और जो है चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे शेयर करती हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन का ना जो है डैमेज कंट्रोल एक चीज़ होती है। और ऑर्गेनाइजेशन में यू आर वर्किंग लाइव, सही है ना, आपके यू हैव बीन, आई एम अ पर्सन, आई हैव बीन गिवन अथॉरिटी कि भाई सर्टेन लेवल तक जो है मैं अपने टास्क को एग्जीक्यूट कर सकती हूँ। ठीक है ना, इफ फॉर एग्जाम्पल द टास्क वुडेंट गो एज आई प्लान, ठीक है, मैंने प्लान किया कि जी मेरे पास जो है इतने लोग आएंगे, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने प्लान किया मेरे पास जो है 10 लोग आएंगे, 10 लोगों को मैंने इंटरव्यू करवा देना है, और इंटरव्यू के लिए मैंने जो है वो लाइन मैनेजर से बात की है, दैट इज अ सीनियर पर्सन। फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास जो है जब ऑन द इंटरव्यू डे जो है मेरे पास सिर्फ 3 लोग अपेयर होते हैं। 3 लोग अपेयर का मतलब ये है, मैं 10 लोगों का टाइम जो है उस बंदे से कहा था कि यू नो सर आई नीड योर टाइम ऑफ 3 आवर्स। ठीक है, वो अपनी मीटिंग्स छोड़ के बैठे, वो अपनी जो है ना वो क्या कहते हैं मेजर जो CFO के साथ या जो टॉप मैनेजमेंट के साथ मीटिंग छोड़ के बैठे। इफ टाइमली आई हैवंट कम्युनिकेटेड टू हिम कि सर 3 बंदे आए हैं, दैट वुड हार्डली टेक योर हाफ आवर। ठीक है ना, तो अनटिल अनलेस क्या होगा कि मेरी जो रेपुटेशन है वो स्टेक पे आ जाएगी। तो आई शुड नॉट हैव टू वेट फॉर दैट person to get interacted with me on the interview day. As soon as I get the information कि यार सिर्फ 3 बंदे आए हैं,
फॉर सम रीजंस, वॉट एवर द रीजंस, वो दूर लगा उनको रास्ता, दे माइट नॉट बी इंटरेस्टेड, उनके घर में कोई मसला हो गया था, वॉट एवर द रीजन इज, I need to communicate timely to the line manager कि sir, three people have appeared. It's your call whether you wanted to interview those person early in the morning और जिस टाइम पे भी, क्योंकि जो है उस बंदे ने जो है कंसर्न शो किया है, दैट पर्सन हैज एक्चुअली एलोकेटेड टाइम फॉर माय टास्क, ठीक है ना, हम्म, इंटरव्यू करने के लिए। तो जो है टाइमली जब मैं कम्युनिकेट करूंगी, माय रेपुटेशन विल नॉट बी एट स्टेक, आई विल बी गिवन गुड पॉइंट्स ऑन दैट टाइमली कम्युनिकेशन, और उसकी वजह से जो है वो एक ये भी हो जाएगा कि उनका टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है ना। हम्म, तो ये वाली चीज़ जो है हमारे यूथ में नहीं है, दे आर जस्ट वेटिंग कि जब वो पूछेंगे तब बता देंगे। नो, दैट शुड नॉट बी द एटीट्यूड। द राइट। अदर थिंग इज, काम मुझसे लिया गया है, द क्वेश्चन जो आपने पूछा था, काम मुझे एलोकेट किया गया है, आई एम रिस्पॉन्सिबल टू गेट दैट थिंग ऑन टाइम। तो जब तक उसकी वैल्यू, उसका मोटिवेशन, मुझे एक बंदा है जो कि जो है फाइनेंस में काम करना चाहता है, आपने उसको मार्केटिंग में डाल दिया है, ठीक है, तो अगर उसका मोटिवेशन ही नहीं है तो फिर ऐसी जगह पे आप काम ना करें। इट्स बेटर कि आप उस जगह पे काम करें जहाँ पे यू हैव काइंड ऑफ मोटिवेशन, जहाँ पे आपको काम करके अच्छा लगता हो, डू बाय फन, हैविंग फन। सही है, ऐसा ना हो कि आपसे जो कंपल्जन काम करवाया जाए। इफ़ यू आर डूइंग समथिंग जो कि आपको कंपल्जन दिया गया है, आप कभी भी उस टास्क को राइटली नहीं करेंगे, फिर आप प्रोक्रास्टिनेट भी करेंगे, आपका दिल भी नहीं चाहेगा, आपके लिए उस टास्क की वैल्यू भी नहीं होगी, ठीक है। और ये जितनी भी हम टाइम मैनेजमेंट के टूल की बात करें वो भी नहीं होगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस यू विल नॉट साउंड अ प्रोडक्टिव एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, जो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसे बंदे को रखना नहीं चाहती जो प्रोडक्टिव ना हो। तो कुछ चीज़ों का नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, एंड द थिंग, द एग्जांपल यू आर टॉकिंग अबाउट, तो मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, मेरे साथ भी ऐसे लोग रहे हैं। उनका एटीट्यूड ये होता है कि दे आर नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा एक पेन भी है ना, तो अगर मैं इस पेन को खुद रखूंगी नहीं और उसको याद नहीं रखूंगी, तो मैं जो है अपने प्रोफेशनल एंड पर्सनल दोनों लाइफ में जो है सक्सेसफुल नहीं होंगी, क्योंकि ये पेन जो है, दिस पेन बिलोंग्स टू मी, दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं इसको कहाँ रखती हूँ, कहाँ नहीं रखती। जब आप बड़े हो जाते हैं एट सर्टेन लेवल, तो यू शुड हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदरवाइज तो फिर आप ना प्रोफेशनल लाइफ में कुछ कर पाएंगे, ना आप पर्सनल लाइफ में कुछ कर पाएंगे, बिकॉज यू आर यूज टू, मेरी बॉडी, मेरा माइंड यूज टू हो चुका होगा कि यार जब मैं गेट पे खड़ी होती हूँ मुझे बैग मिल जाता है, जब मैं गेट पे खड़ी होती हूँ मुझे खाना मिल जाता है, लंच मिल जाता है जानने के लिए, और सुबह को उठती हूँ तो ब्रेकफास्ट मिल जाता है। नो, यू शुड हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट। अच्छा जो कि सना, बहुत एक बात इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ और ये पूछूंगा भी। देखिए, बैलेंस लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमने ये बात की है। और यानी मैं अगर अपनी बात करूँ तो ऑफिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, माई माई वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, माई फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, माई फ्रेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और हम ये डिस्करेज नहीं कर रहे कि आप अगर कोई एक्टिविटी आपकी है, आप यू वांट टू वॉच अ मूवी, यू वांट टू डू सम फन, यू शुड डू दैट। हर चीज़ अच्छी है, हर चीज़ आप करना चाह रहे हैं वो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर वो मिसमैनेज ना हो, बात यहाँ पे ये हो रही है। इफ़ यू वांट टू वॉच अ मूवी, इफ़ यू वांट टू यूज़ वट एवर यू वांट टू डू, लाइक आप, हमने अभी बात की थी कि आप मूवीज़ देख रहे हैं, आप नेटफ्लिक्स पे, आप सोशल मीडिया पे हैं, वहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो नहीं, ऐसा मैं मेरा ये मानना है कि बिल्कुल आप ये सब कुछ कीजिए, सारी चीज़ें, लेकिन ऐसे करें कि कोई चीज़ एक सेक्रीफाइस ना हो रही हो, कहीं ऐसा ना हो कि आपने, क्योंकि देखिए हर चीज़ की ज़्यादती बुरी है। अगर आप मोर देन द लिमिट चले जाएंगे किसी भी चीज़ में, तो इवेंचुअली फिर नुकसान होगा। तो या तो ये होगा कि आपको टाइम नहीं मिलेगा, फैमिली के साथ टाइम नहीं मिलेगा, या आपके दोस्त नाराज़ हो जाएंगे, या फिर आपकी यूनिवर्सिटी आपसे नाराज़ हो जाएगी, आपके टीचर्स आपसे नाराज़ हो जाएंगे, या पढ़ाई आपसे नाराज़ हो जाएगी क्योंकि आप फेल हो जाएंगे। तो इवेंचुअली लॉस आपका ही है। या अगर आप कहीं किसी इदारे में काम करते हैं, फिर एन एम्प्लॉई, तो आपका बॉस जो है आपसे नाराज़ हो जाएगा। तो पॉइंट ये है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको देख के भी ऑब्वियसली बच्चे सीखेंगे और वो सुन रहे हैं आपको, कि हाउ डू यू बैलेंस योर लाइफ, आप कैसे मैनेज करती हैं, आप कैसे बैलेंस करती हैं, क्योंकि यूर अ प्रोफेशनल वुमन एंड एट द सेम टाइम आपकी अपनी फैमिली भी है। हाउ डू यू बैलेंस दैट? A really good question to ask, Yasan. Uh, Giving a live example of myself, I work in an organization that is far behind the city. ठीक है, पोर्ट कासिम पे है, गोइंग टूवर्ड्स दैट ऑर्गेनाइजेशन, कमिंग बैक टू वर्क, Mm, having that 12 hours of 12 hours that are not sleeping hours, and rest hour you can count as a sleeping hours in which we cannot do anything, ठीक है ना।
तो जो आफ्टर वर्क टाइम होता है उसके अंदर जो है यू हैव टू प्लान योर डेज. फॉर Hmm. एग्जाम्पल इफ माई वर्किंग डेज आर फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, देन आई ट्राई कि मैं इसमें कोई जो है अपनी एक्सटर्नल बाहर जाने का काम ना रखूं, कोई जो है वो पर्सनल या जो है फ्रेंड्स की गैदरिंग ना रखूं. रीजन बीइंग these 5 days I am committed to give it to my organization. ठीक है, because I am being paid for this. Definitely after that is my family, because मुझे उनके साथ रहना है. ठीक है ना, तो जिसके लिए मुझे पे किया जा रहा है, first of all that is my priority. The other thing is this कि जिनके साथ मैं रह रही हूँ, those are my priorities. ठीक है. Weekends I have my own time. I can either plan it for a movie, I can have it with my friends, even I can have it my own self कि भाई मैं अपना कोई लेजर काम या एनी सीरीज जो मैं देखना चाहूँ या वट एवर लर्निंग आई वुड रियली वांटेड टू डू इन डू, आई कैन डू दैट. ठीक है. तो मैं अपने वीकेंड जो है प्लान करती हूँ जिसमें आई हैव माई फ्रेंड्स जो कि लिस्टेड होते हैं. इफ दे आर अवेलेबल वी कैन प्लान अ मीटिंग, वी कैन हैव अ गैदरिंग, वी कैन हैव सम आउटसाइड मीटिंग, वी कैन हैव माई जो आप रिलेटिव्स होते हैं उनके घर जाना कर सकते हैं. बट मंडे टू फ्राइडे और मंडे टू सैटरडे इफ आई एम वर्किंग आई एम कमिटेड टू the tasks that are being given to me within my organization. उसके साथ साथ जो है घर पे फोकस रखना होता है कि भाई दिस टाइम आफ्टर वर्क इज लाइक 2 hours का टाइम है जो मुझे अपनी फैमिली के साथ रहना है. ऑफ कोर्स डिनर पे अवेलेबल रहना है, ऑफ कोर्स डिनर की प्रिपरेशन हो गई, एंड 1 hour बिफोर बेड इज फॉर मी. ठीक है. दीज थिंग रियली हेल्प मी आउट कि मैंने अपने आप को जो है डिसिप्लिन कर लिया. Right. डिसिप्लिन अगर आप हो जाते हैं तो आपको पता है जी ला के मैंने अपनी चीज़ें जो है वो कहाँ पर रखनी है, उठा के कहाँ से लेके जानी है. आई नीड टू मेक माई बेड, आई हैव टू एक्चुअली पुट माई अलार्म. ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें मैंने खुद करनी है. फॉर ऑल दीज थिंग्स आई एम नॉट डिपेंडेबल ऑन एनी ऑफ माई फैमिली मेम्बर. तो इस तरह से आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई थिंग्स. और डेफिनेटली फिर उसके बाद जो है वंस यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपका जो है ऑटोमेटिक 3 से 4 दिन में जो है आप इसको जो है अपने ऊपर ट्यून इन हो जाते हो और खुद जो है आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करना शुरू कर देते हो. एंड वंस यू आर ऑन ऑटो फिर आप अपनी सारी चीज़ों को प्लान करके लेके चलते हैं. एंड देन डेफिनेटली वो जो एक होता है ना कि यार मैंने भी बचपन में बहुत कहा है यार टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता. रीज़न बीइंग मैं फ्लो के साथ चलती थी. ठीक जी. है, कि जो है जो जो टास्क आ रहे हैं सारे टास्क को आप जो है कैच करते जा रहे हैं और कैच करते जा रहे हैं और उनको प्ले करते जा रहे हैं. नो, यू डोंट हैव टू डू लाइक दिस. आपको अपना प्लानर डिज़ाइन करना है. बहुत सारे एक देयर इज़ अ टाइम मैनेजमेंट का एक ABCD है, ABCDE. मैं वो ज़रूर शेयर करना चाहूँगी बच्चों के साथ. ABCDE ऑफ टाइम मैनेजमेंट इज दिस. ए आर द टास्क जो सिर्फ मैं कर सकती हूँ, दोज आर इन माई कैपेसिटी, दोज स्किल्स जस्ट आई पोजेस. ठीक है. बी आर द टास्क कि जो कि मैं जो है शेयर कर सकती हूँ, मैं भी कर सकती हूँ, एज वेल एज समवन विद इन ऑर्गेनाइजेशन, समवन विद इन माई फैमिली कैन डू दैट. ठीक है ना. और ये दोनों जो है क्रिटिकल तो नहीं होते लेकिन ये होते हैं कि इम्पोर्टेंट होते हैं कि बस 2 से 3 लोगों के अलावा कोई नहीं कर सकता. ठीक है ना. द थर्ड काइंड ऑफ अ टास्क इज दिस कि जो हमें करके मजा आता है. ठीक है ना. थर्ड जिसको हम सी टास्क भी कहते हैं. सी टास्क आर ऑल दोस टास्क जिसमें हमें मजा आता है, लाइक watching Netflix, going on a seaside, going for shopping, eating out. उसके साथ साथ जो है जो हम सोशल मीडिया पे फाइट करते हैं ट्विटर और जो है वो बहुत सारे लोगों को ये भी होता है कि वो बैठ के ना यो सिर्फ अपनी थ्रेड्स को जो है ऊपर से नीचे करते रहते हैं. यू नो जो भी न्यूज़ आ रही होती है उसको जो है पढ़ रहे होते हैं. नॉट सिग्निफिकेंट वन वो जो सोशल मीडिया की आ रही होती है XYZ. ठीक है ना, उसके अंदर लेजर टाइम जो है निकाल देते हैं. एंड D1 इज दिस कि आप जिसको डेलीगेट कर सकते हैं. ठीक है ना. डेलीगेट वाला जो काम है ना, फॉर एग्जांपल मैं और मेरी सिस्टर जो है एक ही तरह के काम कर सकते हैं तो मैं कहती हूँ यार ये तुम कर दो बिकॉज आई एम रियली बिजी इन सम अदर टास्क. इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन में 2 लोग होते हैं तो जो है टीम मेट्स काम कर रहे होते हैं ना. तो जो है मैं अगर किसी काम में बिजी हूँ तो मैं जो है अपने सबऑर्डिनेट्स को कह सकती हूँ कि भाई ये वाला काम जो है होने में मुझे लग रहा है कि आई माइट टेक टाइम, तो यू कैन गो एंड यू कैन गेट दैट थिंग डन. ठीक है. तो उससे जो है टाइम वापस कंट्रोल हो जाता है, पूरी टीम का टाइम कंट्रोल हो जाता है. और ई आर द टास्क जिसको आपने करना ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन में गॉसिप्स एट द टाइम ऑफ इम्पोर्टेंट टास्क आपने उसमें टाइम ज़ाया करना ही नहीं है. बिकॉज गॉसिप्स वो होते हैं करके बहुत मज़ा आता है लेकिन यकीन माने कि इसका आउटपुट कुछ नहीं है. ठीक है ना. तो ये जो इफ़ यू आर वर्किंग ऑन दीज काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज ABCD ऑफ टाइम मैनेजमेंट को अगर आप जो है अपने साथ
लिख के Right. रख ले, यकीन माने your time will be in your control and you would not be able to say that your time नहीं मिलता. ठीक है, Right. माई सेल्फ हैज डन दैट. इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल, और इससे काफी आपका टाइम जो है वो मैनेज हो जाता है, Right. कंट्रोल Sana, रहता है. राइट, बिल्कुल टेकन. थैंक यू सो मच सना, आपने बिल्कुल अच्छा गाइड किया और बताया. और मैं भी यही कहूँगा कि ये टाइम मैनेजमेंट कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है. और हम्म. बस अपने आप को मैनेज करना सीखें, ज़िंदगी को मैनेज करें, अच्छी आदतें हम्म. अपनाएं, तो ऑब्वियसली यू विल गेट द गुड रिजल्ट्स. और हर दिन अच्छा होने की कोशिश करें. आज के पूरे सेशन में कोई भी अगर आज वक्त पे मैं समझता हूँ कि नमाज भी पढ़ ले, तो भी बहुत मैं ये एक मकसद पूरा हो जाएगा कि टाइम की वैल्यू क्या है. हमने वो बताने की सिर्फ आपके सामने कोशिश की है कि व्हाट इज़ द हम्म. वैल्यू ऑफ टाइम. तो सना, बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, एंड गुड टू सी यू. और इंशाल्लाह फिर आपसे कभी मुलाकात होगी. और बिल्कुल आप हमारे यूनिवर्सिटी भी आइएगा. इस हवाले से मैं आपसे बात भी करूँगा जैसे हमारा डिस्कशन रहा था. थैंक यू सो मच. थैंक यू. टेक केयर. Thank you so much, Yasan, for again your call and for a lovely session on it. I ठीक है. really enjoyed it. ऑलराइट, Thank you थैंक so यू. much. अल्लाह हाफ़िज़. Allah Hafiz. Take care.